ठीक है. So we today will be doing the answer of derivation of torque of a rotating body. Okay. So basically we have an object. That object can be of any given shape, a rigid object of random shape. Okay. That object is rotating about a particular axis. This is the axis of rotation, and it is revolving with an angular velocity of omega and an angular acceleration of how much? Angular acceleration is given as alpha. Okay, alpha is the angular acceleration. A rigid body of any random shape is rotating about a particular given axis of rotation. We need to find out what? We need to find out the value for torque. What will be the torque acting on that body? So to find out torque, I will distribute the entire object into n number of particles. Particle m1, particle m2, particle m3, ऐसा करके particle mn तक का. ठीक है, तो assume करो that initially we are having what? We are having particle m1. Okay. Now particle m1 का axis of rotation से distance कितना है? It can be given as how much? It can be given as this distance, which is given as r1. Which is given as r1. Okay. Now let us first try to find out what will be the formula for force. Force acting on particle m1. Now the entire object is performing rotational motion, yes, but the particle m1 is performing what? It is performing circular motion. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एंटायरली तो टॉर्क काम कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअली m1 के ऊपर क्या काम कर रहा है? m1 के ऊपर फोर्स काम कर रहा है. ठीक है, तो लेट अस से फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला वी हैव डन मेनी टाइम्स. द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू m into a. Okay, so and this force will be perpendicular in direction to the radius. So therefore this will be the direction of the force. F1 is equal to how much? F1 is equal to m1 a1, where m1 is the mass of this object and a1 is what? A1 is the acceleration acting on that particular object. Linear acceleration. A is what? Linear acceleration, and alpha is what? Alpha is angular acceleration. In the very same manner I can say, okay, if there is a particle m2, this particular m2 is having distance of r2, so the force acting is how much? F2 is equal to m2 a2. Okay, ऐसा करके F3 also I can find out, F4 also I can find out. Let us consider this is the last particle Mn having distance Rn, and the force acting is how much? It is equal to Fn is equal to Mn into An. Okay, तो मुझे मिल जाएगा कि टोटल वैल्यू का ये कितना है. ठीक है, फाइन. फोर्स कितना है? ओके. नाउ हमें क्या निकालने का? यहाँ पर हमें निकालने का टॉर्क. Now let us understand what is the torque. Okay, now first of all we do know that to perform rotational motion at least we'll be needing two different forces acting on a body at two separate points. Okay, these two forces they are called as what? They are called as couple. Okay, like for example अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना है, तो वन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, अदर फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, एंड दे आर बोथ separated by a perpendicular distance which will be the diameter of the circle. Okay, now these two forces they are called as what? They are called as couple. Okay, they are called as couple. और जब मैं इस कपल को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ द कपल. ओके, मोमेंट ऑफ द कपल. मोमेंट ऑफ द कपल इज हाउ मच? इट इज कॉल्ड एज टॉर्क. इट इज कॉल्ड एज टॉर्क बेसिकली. ओके, फाइन. तो हमें ये मेथड है, यही मेथड से हमें आगे सॉल्व करना है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्विंग. ओके, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि द फॉर्मूले फॉर a1, अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन निकालूँ, मैं इफ़ आई ट्राई टू फाइंड आउट लीनियर एक्सेलरेशन, तो जनरल फार्मूला क्या है? a इज इक्वल टू आर अल्फा. a इज इक्वल टू हाउ मच? आर अल्फा. a इज लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और r क्या है? r तो अपने को पता है, रेडियस है. तो हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट सो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा डॉटेड an इज इक्वल टू rn अल्फा. ठीक है, अब हम वापस अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 नहीं डालेंगे. अल्फ़ा इज सेम थ्रू आउट, लाइक हाउ इन द प्रीवियस सम वी स्टडीड दैट ओमेगा इज सेम थ्रू आउट. ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस. इन द वेरी सेम मैनर अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा. अंडरस्टूड? ठीक है, फाइन. तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा के अंदर हम लोग अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 वो सब हम लोग नहीं डालेंगे. ठीक है, फाइन. सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद वी विल देन गो टू द फॉर्मूले फॉर फोर्स. अब हमें ये पता है, हमने पहले भी ऊपर डायग्राम में भी हमने लिखा है, तो फॉर्मूले फॉर फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? अगर मैं फोर्स की बात करूँगा तो फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? फोर्स इज इक्वल टू वी नो एम ए. ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं.
ठीक है, ऊपर डायग्राम में भी हम लोग लिख चुके हैं, विच इज इक्वल टू हाउ मच एम, और ए में देखो यहाँ पर ऊपर निकाल चुका हूँ, एम इज ए इज हाउ मच, ए इज आर अल्फा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा एम इंटू आर इंटू अल्फा। ओके, सो आई कैन से दैट फोर्स फॉर पार्टिकल F1 इज हाउ मच, F1 इज M1 R1 अल्फा, है ना। F2 कितना रहेगा, F2 रहेगा M2 R2 अल्फा, है ना। इन द वेरी सेम मैनर till dot 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 till Fn, it will be how much, Fn will be Mn Rn अल्फा। अंडरस्टूड, ठीक है, फाइन। एक बार हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर इन द एंड इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। अब मैंने पिछले इसमें मैंने क्या कहा था कि टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, मोमेंट ऑफ द कपल, ओके। तो हेंस आई कैन से दैट द जनरल फॉर्मूला फॉर फोर्स, ओके, जनरल formula of force is equal to how much, torque tau, this symbol is called what, this symbol is called as tau, this is equal to how much, this is equal to F into R, F into R, but F is what, F is the force and R is what, the perpendicular distance, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, F का फॉर्मूला क्या है, F का फॉर्मूला है M इंटू आर इंटू अल्फा, तो हैंस दिस विल बिकम व्हाट, M इंटू आर इंटू अल्फा, और क्या बचा एंडिंग में, यहाँ पर R बचा, R, ओके, M इंटू आर इंटू अल्फा इंटू R, तो ये R मल्टीप्लाई बन जाएगा, और क्या बनेगा इन द एंड लेवल से M R स्क्वायर अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, द जनरल फॉर्मूला फॉर टाउ, ओके। तो अगर ये जनरल फॉर्मूला फॉर टाउ मुझे मिल गया तो मैं टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 सब में निकाल सकता हूँ मैं, ओके। सो आई कैन से दैट टाउ 1 इज इक्वल टू हाउ मच, टाउ 1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा, tau 2 will be equal to how much, tau 2 will be equal to M2 R2 square alpha, in the very same manner tau n will be equal to how much, Mn Rn square alpha। तो मुझे हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्टिंग टॉर्क मुझे मिल गया है, ठीक है। टोटल फाइनल टॉर्क कितना रहेगा, टोटल फाइनल टॉर्क, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट टाउ विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ व्हाट, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ टाउ n, सारे तुम टॉक को समेशन निकालो, सबको तुम एडअप करो, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n तक का, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे से देखो मैं अल्फा कॉमन निकाल सकता, सब में अल्फा है, तो अल्फा मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट है दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n Mi Ri स्क्वायर, ठीक है। देखो वही M1 R1 स्क्वायर से लेके Mn Rn स्क्वायर तक का सबका समेशन, टोटल M R स्क्वायर का समेशन इनटू अल्फा। अब ये जो ब्रैकेट है हम पढ़ चुके हैं कि ये जो ब्रैकेट है समेशन ऑफ Mi Ri स्क्वायर, इसको हम लोग अलग नाम से बुलाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देयरफॉर आई विल से दैट फाइनल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू I इंटू ए, तो मुझे टॉर्क का फॉर्मूला मुझे मिल गया, ठीक है। वन मोर थिंग दैट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड एट द एंड इज व्हाट, अब लेट अस गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर फोर्स, F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वो काम क्या करता है, टॉर्क करता है। तो टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। कभी ज़िंदगी में तुमको ये दिखाने देगा कि टॉर्क अप्लाई किया और लीनियर मोशन प्रोड्यूस हो गया, नो, टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। मास का काम कौन कर रहा है, मास का काम कर रहा है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन काम कौन कर रहा है, अल्फा, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। हेंस टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, सो वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, ठीक है, फाइन।